नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए एक बहुत ही सुंदर तोहफा लेकर आए हैं ऑडियो बुक के माध्यम से। बहुत समय तक मैं पत्री जी से ये प्रार्थना करती रही कि भज गोविंदम आपने अंग्रेजी में और तेलुगु में जो गाया है और जो समझाया है वो इतना दिव्य ज्ञान है, इतनी सरल भाषा में आपने समझाया है। आप उसे हिंदी में भी करें। बहुत बार प्रयास किया, लेकिन पत्री जी ने कहा कि नहीं, अभी इस बार उसका हिंदी अनुवाद जो है वो आपके साथ साझा करने जा रही हूं, ताकि पत्री जी के दिव्य ज्ञान का सभी को लाभ मिले। और इस ऑडियो बुक को बनाने में श्री शक्ति जी ने और कनाडा से जपनूर प्रीत जी ने बहुत मेहनत की है। उन्होंने एक एक श्लोक के अर्थ और पत्री जी की आवाज में उन श्लोकों को जोड़कर 4 जो भाग हैं उनको पूर्ण किया है। उनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं अकेले तो ये काम कर ही नहीं सकती। मैं बोल सकती हूँ, लेकिन मैं वीडियो एडिटिंग करना, ये सब ऑडियो बुक्स बनाना, ये मुझे नहीं आता टेक्नोलॉजी। लेकिन उन दोनों ने बहुत मेहनत करके, जैसा मेरे मन में भाव था कि श्लोक पत्री जी की आवाज में हो और उसका जो अनुवाद है अंग्रेजी से हिंदी भाषा में, वो आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। ये नव वर्ष का उपहार समझिए आप, जहां ध्यान ज्ञान संगम चैनल पर आत्म योगी बनो पंजाबी की पुस्तक शुरू करने जा रही हूँ। वहीं ये 4 जो ऑडियो बुक हैं ये आपके साथ साझा करने जा रही हूँ, ताकि आप सभी को पत्री जी के उस अनमोल ज्ञान का लाभ प्राप्त हो। तो आज उसका पहला भाग आपके साथ साझा कर रही हूँ। पत्री जी द्वारा आदि शंकराचार्य जी के भजन भज गोविंदम का तेलुगु और अंग्रेजी भाषा में व्याख्यान दिया गया। शंकराचार्य जी के अद्भुत ध्यान ज्ञान और स्वाध्याय के सूत्रों को पत्री जी ने खोलकर बहुत ही सरल भाषा में हम सब तक पहुंचाया। लेकिन तेलुगु और अंग्रेजी भाषा में होने के कारण हिंदी भाषा जानने वाले साधक इस ज्ञान से वंचित हैं। इसलिए पत्री जी के अंग्रेजी भाषा में दिए गए भज गोविंदम का हिंदी अनुवाद करके आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। आदि शंकराचार्य जी के मूल श्लोक पत्री जी की आवाज में है, लेकिन उनका हिंदी अनुवाद करके उसे अपनी आवाज देकर आप सब तक पहुंचाने का प्रयास किया है, ताकि सभी सत्य के साधक इस अनमोल ज्ञान का लाभ ले सकें। Bhajagovindam of the great master Adi Shankaracharya is very, very dear to me. In every meditation session, I would like to sing it and explain it. Nothing gives me greater pleasure than singing the Bhajagovindam and then explaining it. Now, for the benefit of the pyramid masters throughout India, this would be a great help. Therefore, let us now go into details of the magnificent Bhajagovindam of the great master Adi Shankaracharya. Bhajagovindam has got many stanzas. Some have been contributed by the master himself, and some others have been provided by the great disciples of Adi Shankaracharya. But we will not go into all those details. All the stanzas, shlokas, we refer to as Shankaracharya's own production, because he and his disciples are one and same. He and all the masters are one and same. There is no difference in the master's perceptions, master's experiences, master's teachings. So whether it is Krishna or Shankaracharya or Buddha or Jesus Christ or Zarathustra or Mahavira or Ramana Maharshi or Ramakrishna Paramahamsa, all are one. So, although we are speaking of Adi Shankaracharya, here we are speaking the only one eternal truth. Every word here in reflects the great truth, so beautifully, so simply revealed to us, and so straight that it goes deep into our hearts, changes our thinking, changes our energy levels. So, let us go into the journey to the center of the truth through this great Bhajagovindam. Bhajagovindam, the first shloka repeats itself. It is called as the main shloka. So all the other shlokas are sung. Again we come back to Bhajagovindam now and then. So that's how it is sung usually. Bhajagovindam without singing, it does not have its beauty. So we got to sing also the great Bhajagovindam. Then only the whole beauty comes out. So
We'll go ahead with singing Bhajagovindam, shloka by shloka, stanza by stanza, and then come back to explain it word to word, and then the total meaning and some implications of it. So that's how we'll start our journey to the center of the truth. पत्री जी कहते हैं, शंकराचार्य जी का भजन भज गोविंदम मुझे अति प्रिय है। मैं सभी ध्यान सत्रों में इसे गाना पसंद करता हूँ। सभी पिरामिड मास्टर्स के लाभ हेतु मैंने भज गोविंदम के श्लोकों का अंग्रेजी और तेलुगु भाषा में अनुवाद किया है। इससे सभी की बहुत मदद होगी। तो आइए अब हम महान मास्टर आदि शंकराचार्य जी की अद्भुत कृति भज गोविंदम में उनके द्वारा दिए गए गूढ़ ज्ञान को ग्रहण करते हैं। भज गोविंदम में अनेक श्लोक हैं। कुछ श्लोक आदि शंकराचार्य जी द्वारा लिखे गए हैं और कुछ श्लोक उनके महान शिष्य द्वारा जोड़ दिए गए हैं। और हम इस विस्तार में नहीं जाएंगे। हम सभी श्लोकों को उनकी ही कृति मानेंगे, क्योंकि वह और उनके शिष्य एक ही हैं। वह और सभी मास्टर भी एक ही हैं। मास्टर की कल्पना, संकल्पना, अनुभव और शिक्षा एक ही है, चाहे वे कृष्ण हो, शंकराचार्य, बुद्ध, जीसस, रमन महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, महावीर, जरथुस्त्र, सब एक ही हैं। इसलिए हम चाहे शंकराचार्य जी की बात कर रहे हैं और हम शाश्वत सत्य की बात कर रहे हैं। इन श्लोकों का हर अक्षर बहुत ही साधारण, सहज, सुंदर और सीधे तरीके से सत्य को दर्शाता है, जो सीधा सीधा हमारे दिल में उतर जाता है, हमारे विचार, ऊर्जा और अनुभूति को बदल देता है। आइए भज गोविंदम के साथ सत्य की ओर यात्रा करें। भज गोविंदम में पहले मुख्य श्लोक है और फिर बाकी श्लोक हैं। हम हर श्लोक के बाद पहले श्लोक का गायन करेंगे। बार बार हम इस पहले श्लोक पर आएंगे। गायन के बिना भज गोविंदम की सुंदरता उभर कर नहीं आती, इसलिए इसे गायन शैली में गाएंगे, जिससे इसकी पूरी सुंदरता बाहर आएगी। हम एक एक श्लोक के एक एक शब्द की व्याख्या करके भावार्थ को समझेंगे कि कैसे इसे जीवन में उतारना है। श्लोकों को गाते हुए हम हर श्लोक के साथ आगे बढ़ेंगे और इस तरह हम सत्य के केंद्र की ओर अपनी यात्रा करेंगे। आइए शुरुआत करें। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्त सन्निहितकालं हि रक्षति डुक्रुङ्करणे भज गोविन्दम्। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। गो अर्थात इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। गोविंदा अर्थात इंद्रियों का जो स्रोत है, जो इंद्रियों की पालना करता है। गोविंदा का अर्थ विशेषता कृष्णा का व्यक्तित्व नहीं है, इसलिए भज गोविंदम। भज अर्थात मनन करना, भीतर जाना। शंकराचार्य जी का कथन मन को संबोधित है। मूढ़ मते, हे मूर्ख मन, अनुपजाऊ मन, अपरिपक्व मन को बुद्धि में परिवर्तित करना है। इसके लिए स्रोत की ओर जाना है। स्वयं का स्रोत व ज्ञान इंद्रियों का स्रोत। ज्ञान इंद्रियों के स्रोत की खोज करना, मनन करना मन द्वारा ज्ञान इंद्रियों का, यही भजन है। शंकराचार्य जी कहते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। 3 बार दोहराते हैं। ये 3 बार दोहराने का सिद्धांत शंकराचार्य जी की शिक्षाओं से शुरू होता है। देखो कितनी सुंदरता से उन्होंने अपनी शिक्षाओं की रचना की है। वे स्वयं भी 3 बार दोहराते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। जो भी बोलना है हमेशा 3 बार बोलना है, तब वह अवचेतन मन में गहरा उतर जाता है। भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्त सन्निहितकालं हि रक्षति डुक्रुङ्करणे। सम्प्राप्ते सन्निहितकाले। संप्राप्ते सन्निहित काले। संप्राप्ते अर्थात जब आपके जाने का समय आ गया, तो आपका संसार का ज्ञान कुछ भी काम नहीं आएगा। नहीं नहीं रक्षति दुखम करने, दुख करने संस्कृत व्याकरण का शब्द है। बहुत विषयों पर आपकी स्कॉलरशिप किसी काम नहीं आएंगे। जब आप अंततः धरती को छोड़कर उच्च लोकों में जाएंगे, वहां आपको क्या चाहिए?
वहां आपको आत्मज्ञान चाहिए, स्व का ज्ञान। यदि धरती पर आपको स्व का ज्ञान नहीं हुआ तो वहां आप बिल्कुल व्यर्थ हैं, इस दुनिया से व्यर्थ ही चले जाएंगे। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं, जागो, उठो, किसी भी क्षण आपको शरीर छोड़ना पड़ सकता है। अभी इसी समय अपना वीजा, पासपोर्ट, विदेशी मुद्रा एकत्रित करें। इसके लिए आपको आत्मचिंतन करना है। हे मूर्ख मन, ध्यान रख, तेरे जाने का समय जल्दी ही आ रहा है। कभी भी किसी भी क्षण जाना पड़ सकता है, इसलिए तुझे तैयार रहना है। नहीं नहीं रक्षति दुखों कर्ण, दोबारा दोहराते हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। दोहराने पर जोर देते हैं कि धरती की कोई भी चीज उच्च लोक में तुम्हारी मदद नहीं करेगी, केवल उच्च लोकों की चीजें ही मदद कर सकती हैं। उच्च लोकों का ज्ञान ही वहां मदद करेगा। धरती की चीजें धरती पर मदद करेंगी, स्वर्ग में नहीं। और उच्च लोकों का ज्ञान धरती पर भी मदद करेगा। हमेशा उच्च ही निम्न की मदद करता है, निम्न कभी भी उच्च की मदद नहीं कर सकता, ये असंभव है। इसलिए जब हम धरती के तीसरे निम्न आयाम पर अस्थायी रूप से हैं, तभी उच्च लोकों का ज्ञान अर्जित करना है। समय आने से पहले ही उच्च लोकों का ज्ञान हासिल करने के लिए शंकराचार्य जी कह रहे हैं। अगले श्लोक में वे कई विषयों पर बता रहे हैं, आइए जानते हैं। मूढजहि दनागमतृष्णां कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णां यल्लभसे निजकर्मोपातं वितमुत्तेन विनोदय चित्तं भज गोविन्दम् मूढजहि दनागमतृष्णां कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णां यल्लभसे निजकर्मोपातं वितमुत्तेन विनोदय चित्तं भज गोविन्दम्। दूसरा श्लोक, मूढ़ जही धन आगम तृष्णा। हे मूर्ख मन, धन की तृष्णा को छोड़ दे, धन ही कमाते रहना, अपनी बुद्धि का थोड़ा इस्तेमाल कर। मन को अनंत इच्छाओं से मुक्त कर। मन से वितृष्णा, जो भी खून पसीने की कमाई है उससे जीवन यापन कर और आनंदित रहो। वित्तम तेन विनोदय चित्तम। एकदम शंकराचार्य जी वैराग्य की बात नहीं करते, आनंद की बात करते हैं। विनोदय चित्तम, जीवन का आनंद लो, पर अपनी सही कमाई से। ना ज्यादा कमाओ, ना कम कमाओ, गलत तरीके से धन ना कमाओ, सही ढंग से कमाओ और आनंद लो। यही शंकराचार्य जी ने इस महान श्लोक में बताया है, यही उनकी शिक्षा है। मूढजहि दनागमतृष्णां कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णां यल्लभसे निजकर्मोपातं वितमुत्तेन विनोदय चित्तं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते संप्राप्ते सन्निहित काले नहि रक्षति टुक्रुंकरणे भज गोविन्दम् नलिनी दलगत जलमति तरलं तत्वत् जीवितमतिशय चपलं विधिव्याज्य विमानग्रस्तं लोकं शोकाहतं जसमायतं भज गोविन्दं नलिनी दलगत जलमति तरलं तत्वत् जीवितमतिशय चपलं विधिव्याज्य विमानग्रस्तं लोकं शोकाहतं जसमायतं भज गोविन्दम्। नलिनी दलगत जलमति तरलम। नलिनी दल अर्थात कमल पत्र, दलगत जो उस पर पानी की अस्थिर बूंद है, इसी तरह जीवन भी अस्थाई है। मति तरलम, अनंत अतियों के कारण हम हर चीज में अति करते हैं, इसलिए अस्थिर हैं। सभी संसार दो चीजों से प्रभावित है, आदि शारीरिक दुख, व्याधि मानसिक दुख। शारीरिक दुख हमें बीमारी के रूप में होता है और मानसिक दुख अहंकार के कारण होता है। इसलिए समस्त मानवता रो रही है, शोक हतम, सभी का यही हाल है। संसार की क्या दशा है, शरीर में बीमारी, मन में बीमारी, ये दो बीमारियां हैं, एक शरीर की और एक मन की। इसलिए सारा जीवन अस्थिर है। जैसे कमल के पत्ते पर एक पानी की बूंद अस्थिर है, हर कोई देख सकता है कमल के पत्ते पर पानी की बूंद कितनी असंतुलित है।
ये अति सुंदर उदाहरण है जिसकी कल्पना की जा सकती है। तो हमें क्या करना है? हमें अंतर्मुखी होना है। यही भज गोविंदम का अर्थ है। अंतर्मुखी होना, आत्मा की ओर मुड़ना, भज गोविंदम है। आत्मा ही गोविंद है। गो अर्थात इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, इनके माध्यम से हम बाहरी संसार देखते हैं। अब हमें बाहरी संसार को देखना बंद करना है, अंदर की ओर मुड़ना है, अंदर जाना है, जिसे भज गोविंदम कहा गया है। तब मूर्ख मन अपनी मूर्खता को छोड़कर बुद्धिमान हो जाएगा। जब मन अपनी मूर्खता छोड़ देता है तो इसे बुद्धि कहते हैं। हमारा मन बुद्धि में रूपांतरित होना चाहिए। मन बिखरा हुआ है, बुद्धि समझती है। मन का रूपांतरण बुद्धि में कैसे होना है? जब मन निर्विषय होकर आत्मा में प्रवेश करेगा। बाहरी दुनिया से अंतरात्मा में जाने से बुद्धि जागृत हो जाएगी और बाहरी दुनिया में हमारे कार्यों को नियंत्रित करेगी और हमें खुशियां देगी। यावत् पवनो निवसति देहे तावत् पृच्छति कुशलं गेहे गतवति वायौ देहापाये भार्या बेभ्यते तस्मिन् गाय भज गोविन्दम्। यावत पवनो निवसत देहि, जब तक भौतिक शरीर में प्राणवायु है तब तक सब कोई आपकी सेहत के बारे में हालचाल पूछते हैं। जिस क्षण श्वास शरीर को छोड़ देता है, पत्नी भी शव को छूने से डरती है। उस समय तक पत्नी ने उस पति के शरीर से प्यार किया है और वे छूने से भी डरती है। क्या हुआ है? कुछ तो हुआ है। क्या हुआ है? श्वास ने शरीर छोड़ दिया है। शरीर में श्वास ही आत्मा है। यदि आप शरीर में आत्मा को जानना चाहते हैं तो अपनी आती जाती सांसों के साथ रहें। सांसों को महसूस करके ही भौतिक शरीर में रहते हुए आप आत्मा को जान सकते हैं। इस तरह आप एक आत्मज्ञानी बुद्ध पुरुष बन जाते हैं, मास्टर बन जाते हैं। इसी तरह आदि शंकराचार्य जी मास्टर बने हैं और हमें भी यही कह रहे हैं। इस श्लोक में मृत्यु के बारे में बताया गया है। गतवती वायु देहा पाया। मृत्यु क्या है? शरीर से प्राण वायु का जाना ही मृत्यु है। देह के लिए खतरा है। यावत् पवनो निवसति देहे तावत् पृच्छति कुशलं गेहे गतवति वायौ देहापाये भार्या बेभ्यते तस्मिन् गाय भज गोविन्दम्। भज गोविन्दम् गोविन्दम् भज मूढमते। Another shloka. यावद्वित्तोपार्जनसक्तः स्थावन्निज परिवारो रक्तः पश्चाज्जीवति जर्जर देहे वार्तां कोऽपि न पृच्छति गेहे भज गोविन्दम्। जब तक आप धन कमा रहे हो, आपके सभी रिश्तेदार आपको घेरे रखेंगे, आपके आसपास रहेंगे। जैसे ही आप शरीर छोड़ देते हो, सभी रिश्तेदार तित्र बित्र हो जाते हैं। कोई भी आपके पास नहीं रहता। जब तक आप जी रहे हो, धन कमा रहे हो, तब तक वे आपके साथ हैं। जिस क्षण आप भौतिक शरीर को छोड़ देते हो, कोई भी आपको याद नहीं करता। उनका काम आपके साथ नहीं, आपके धन के साथ था। अब उनका काम समाप्त हो गया है। ये महान सत्य शंकराचार्य जी ने हमें अति सुंदरता से बताया है। यावद्वित्तोपार्जनसक्तः स्थावन्निज परिवारो रक्तः पश्चाज्जीवति जर्जर देहे वार्तां कोऽपि न पृच्छति गेहे भज गोविन्दम्। भज गोविन्दम् गोविन्दम् भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहितकाले नहि रक्षति रूपङ्करणे भज गोविन्दम्। One more shloka. नारीस्तनभरनाभिदेशम् दृष्ट्वा मागमोहावेशम् एतन्मांसवसादि विकारं मनसि विचिन्तय वारं वारं भज गोविन्दम्। नारीस्तनभरनाभिदेशम् दृष्ट्वा मागमोहावेशम् एतन्मांसवसादि विकारं मनसि विचिन्तय वारं वारं भज गोविन्दम्। भज गोविन्दम्
गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते गाले नहि रक्षति डुक्रुङ्करणे भज गोविन्दम्। नारी स्तन भर नाभि देशम, अर्थात स्त्री की सुंदरता देखकर उसके मोह में अत्यधिक न पड़ जाएं। तिष्ठा मागा मोहावेशम, अत्यधिक प्रतिक्रिया ना करें। ये केवल भौतिक शरीर है और ये भौतिक शरीर का हिस्सा है जिसकी आवश्यकता समय अनुसार होती है। हमें भौतिक भोग का आनंद लेना है और ये अंत नहीं है। भोग का भी शांति से आनंद ले, उससे अत्यधिक आवेश में ना जुड़ जाएं। यदि आप हार्ड कोर्स पर रहेंगे तो जल जाएंगे। शांति से आनंद लें, अत्यधिक ना करें। आदि शंकराचार्य जी हमें मध्य मार्ग पर चलने को कहते हैं। जीवन का आनंद लें, प्रतिक्रिया ना करें, इंद्रियों के पार भी देखें। केवल इंद्रियां और मन के भोग में लिप्त ना रहें। आपका मन बहुत कुछ करता है, पर आपकी बुद्धि आपके जीवन की वास्तविकता से आपका परिचय कराती है। मन के साथ आप मोह में हैं, आवेश में हैं। बुद्धि आवेश को समाप्त करती है। तब आप सही समय पर सही निर्णय लेकर कार्य करते हैं। इसलिए अति ना करें, मन के पार देखें, जीवन का आनंद लें। शंकराचार्य जी पुनः धन के विषय में बात करते हैं। दो चीजें हैं जिससे लोग लिप्त रहते हैं, एक शारीरिक सुख और दूसरा धन। अर्थमनर्थं भावय नित्यं नास्ति ततः सुकलेशः सत्यं पुत्रादपि धनभाजां सर्वदुर्जाविहितारेते भज गोविन्दम्। अर्थमनर्थं भावय नित्यम्। अगले श्लोक में शंकराचार्य जी बताते हैं, सब लोग दो चीजों में आसक्त हैं, एक शारीरिक भोग, दूसरा धन। अर्थम नर्थम भावे नित्यम नास्ति तथा सुख लेशा सत्यम पुत्रादपि धन भाजम भीति सर्वद्रेषा विहिता रीति। अर्थम नर्थम भावे नित्यम, अत्यधिक धन कमाना हमेशा दुख और तनाव लाता है। नास्ति तथा सुख लेशा सत्यम, महान धन में सरसों के दाने जितना भी वास्तविक आनंद या सुख नहीं है। धनवान व्यक्ति को केवल चोरों का ही नहीं, अपनी संतान का भी डर है कि वे मेरा धन न छीन ले। वह अपनी संतान से भी डर कर चिंता में जी रहा है। अर्थम नर्थम भावे नित्यम पुत्रादपि धन भाजम भीति सर्व त्रेषा विहिता रीति। यही सच्चाई है, पुत्रों से डर रहा है। सब जगह यही हाल है। शंकराचार्य जी के समय, उससे पहले या उसके बाद भी सच्चाई तो एक ही है, समस्या तो एक ही है। मानवता उसी चुनौती का सामना कर रही है। मनुष्य की समस्याएं नहीं बदली हैं। इसी तरह सत्य की खोज की विधि भी एक ही है। हजारों सत्य नहीं है, सत्य की खोज की विधि भी एक ही है। वह एक विधि शंकराचार्य जी ने दी है। शंकराचार्य जी कहते हैं, भज गोविंदम, अंदर जाओ, मन को अंतर्मुखी करो, आत्मा में जाओ जो गोविंद है। हजारों लाखों सालों से मानवता इन समस्याओं का सामना कर रही है, वह नहीं बदली। इसी तरह सत्य की खोज भी नहीं बदली, हजारों सालों बाद भी सत्य यही है। व्यक्ति की समस्याएं नहीं बदली, व्यक्ति की समस्याएं वही है। इसी तरह सत्य की खोज की विधि भी नहीं बदली, हजारों लाखों सालों से सत्य की खोज की विधि भी यही है। मन को आत्मा में प्रवेश करना है, यही गोविंदा है। सो अर्थमनर्थं भावय नित्यं नास्ति ततः सुकलेशः सत्यं पुत्रादपि धनभाजां सर्वदुर्जा विहितारेते भज गोविन्दं भज गोविन्दम्। गोविन्दं भज मूढमते बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तासक्तः परसे ब्रह्मणि गोविन्दसक्तः भज गोविन्दम्। शंकराचार्य जी कहते हैं, बालस तावत क्रीड़ा सब, अति सुंदर श्लोक है। हर किसी को बालपन में अनेक खेल आकर्षित करते हैं। इसी तरह तरुणास्तावत तरुण ही सकता, यौवन में शारीरिक भोग आकर्षित करते हैं। व्यक्ति उन्हीं में लिप्त रहता है, उसके पास कुछ और करने का समय ही नहीं है। जब आप बालक हो, खेलों में उलझे हो, जब युवा हो, संसार में उलझे हो और कुछ दिखाई नहीं देता, और जब वृद्ध हो जाते हो, अनेक कठिनाइयां घेर लेती हैं। सत्य की खोज का अब समय ही नहीं है, सीधे खड़े नहीं हो सकते। क्या करोगे, कब ध्यान करोगे? बाल्यावस्था में कुछ और कर रहे हो, युवावस्था में और चीजों में उलझे हो,
और वृद्धावस्था में बीमारियों ने घेर लिया है। सत्य की खोज कब करोगे? आप पूरी तरह से दिवालिया हो चुके हो। सत्य की खोज करने के लिए आपके पास ऊर्जा ही नहीं है। किस समय सत्य की खोज करोगे? शंकराचार्य जी के अनुसार बचपन से ही हमें खेलों के साथ साथ आत्मा का चिंतन कर ध्यान करना चाहिए। युवावस्था में भोग का आनंद लेते हुए ध्यान करें। वृद्धावस्था में अपनी व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं का समाधान करते हुए आपको ध्यान करने के काबिल होना है। हम ये कारण नहीं दे सकते कि हम बहुत कामों में व्यस्त हैं, हमारे पास ध्यान करने के लिए समय नहीं है, स्वयं की खोज करने का समय नहीं है, सत्य की खोज का समय नहीं है। ये मूर्ख लोगों का वक्तव्य है। बुद्धिमान लोग स्वयं की ऊर्जा को सहेज कर जीवन के किसी भी पड़ाव में उस उम्र की अवस्था की गतिविधियां करते हुए बहुत ध्यान करते हैं, सत्य की खोज करते हैं। इसलिए जब शरीर स्वस्थ है तभी ध्यान करें। आगे के श्लोक हम दूसरे भाग में लेंगे।